शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पुनः शुभ आविर्भाव 6 फरवरी 1874 সরি 6 ফেব্রুয়ারি 1874 উনি এই জড়জগতে আবির্ভাব হয়েছিলেন। আর আসলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পর ক্রমে ক্রমে ওনার শিক্ষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। অপসম্প্রদায়গুলি আস্তে আস্তে প্রবলভাবে বেড়ে চলছিল। আউল বাউল লেরালেরি সখা ভাজি কর্তা ভাজি সব এগুলো আস্তে আস্তে অপসম্প্রদায়গুলো বেড়ে যাচ্ছিল, তাদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছিল। আর এই অপসম্প্রদায়গুলো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামে 4 নিয়ম ভঙ্গ করত: মাংসাহার, আমিষাহার, জুয়া, অবৈধ সঙ্গ, নেশা, এগুলো সব আমরা আজও দেখছি এরকম আছে, এরকম অনেক। আর এই জন্য যারা শিক্ষিত সমাজেরা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা থেকে দূরে করে নিতে লাগলো এই অপসম্প্রদায়গুলির অবস্থা দেখে। ওনারা ভাবছিল যে হয়তো এটাই হয়তো মহাপ্রভুর শিক্ষা। তো ওই সময় খুবই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব, খুবই উন্নত স্তরের বৈষ্ণব শিলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, উনি আবার চেষ্টা করছিলেন যে পুনরুদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভুর, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেই শিক্ষা পুনরুদ্ধার করার জন্য খুবই চেষ্টা করছিলেন। আর উনি প্রচার করছিলেন যে এই অপসম্প্রদায়গুলি যা শিক্ষা দিচ্ছেন সেগুলো কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষা নয়। উনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিচার শিক্ষা সেগুলো স্থাপন করার খুবই চেষ্টা করছিলেন, ওর জন্য গ্রন্থ লিখছিলেন, প্রচার করছিলেন। যেভাবে চৈতন্য চরিতামৃতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষা উনি প্রচার করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চৈতন্য চরিতামৃতের কোনো গ্রন্থই ওই সময় উপলব্ধি ছিল না। অনেক খোঁজার পর উনি একটি সিঙ্গেল কপি উড়িষ্যা থেকে পেয়েছিলেন শিলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর চৈতন্য চরিতামৃতের। অনেক খোঁজার পর, উনি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, জগন্নাথ পুরী মন্দিরের কাস্টোডিয়ান ছিলেন, কিন্তু তাও চৈতন্য চরিতামৃত আস্তে আস্তে লুপ্তই হয়ে গেছে, একটা সিঙ্গেল কপি পাচ্ছিলেন না। অনেক খোঁজার পর উনি একটি পেয়েছিলেন। এন্ড উনি এই চৈতন্য চরিতামৃতের উপর নিজের ভাষ্য লেখা শুরু করেন শিলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, যে ভাষ্য খুবই প্রচলিত, অমৃত প্রভাব ভাষ্য আমরা বলি। কালকে জিজ্ঞেস করছিলেন না দুদিন আগে কি ভাষ্য মানে সবাই নিজের একটা ভাষ্য লেখে, নিজের কমেন্ট্রি, আর সেই কমেন্ট্রির নাম হচ্ছে অমৃত প্রভাব ভাষ্য। তার ভক্তি বিনোদ ঠাকুর উনি একদিন ওনার স্বরূপগঞ্জের যে গৃহ, মানে আমাদের মায়াপুরের ওই ঘাট ক্রস করলে যে স্বরূপগঞ্জ আসে, সেই গৃহের থেকে উনি একদিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে একটি খুবই ওই পারে খুবই এক উজ্জ্বল একটি রশ্মির ছটার মতো বেরোচ্ছিল। আর তো পরবর্তী দিনে উনি ওই স্থানে গিয়ে দেখলেন যে একটি বিশাল বড় নিম বৃক্ষ রয়েছে, আর চারিধারে তুলসী বাগান, তুলসীর জঙ্গল হয়ে গেছে, মাঝখানে একটি নিম বৃক্ষ। উনি এই স্থানটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন ওখানকার লোকালসদের, ওনারা বললেন এই স্থানটির নাম হচ্ছে মিয়াপুর। উনি এই স্থানটির ব্যাপারে ভালো করে বুঝতে পারছিলেন না যে কেন এত উজ্জ্বল। উনি নিজের পুত্রকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন ওই সময় যে তুমি কি দেখলে কি একটা উজ্জ্বল একটি এই স্থানে দেখা যাচ্ছে? তো ওনার পুত্র ঠিক শিওর না উনি শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন কিনা, কিন্তু উনি বলছিলেন হ্যাঁ এরকম দেখছি। তো পরবর্তীকালে উনি ওনার গুরুদেব শিল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ কে ওই স্থানে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। না, গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের বয়স তখন 140 বছর।
ওনার শরীর একদম বেঁকে গেছে, 140 বছর, বুঝতেই পারছেন। আর কিন্তু উনি স্বাস্থ্যে খুবই পারঙ্গম, খুবই উন্নত বৈষ্ণব, হ্যাঁ, বৈষ্ণব সার্বভৌম, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, সরি জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে আসার জন্য উনি খুব পরিকল্পনা করছিলেন ওই স্থানটি দেখানোর জন্য। তো জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ শরীর তো খুবই অসুস্থ তখন, আর খুবই বৃদ্ধ অবস্থায় ওনাকে, উনি কোথাও যদি যেতেন তো ওনাকে, ওনার একটি ভৃত্য ছিল, দাস ছিল, নাম বিহারী ছিল। তো বিহারী একটি টকরির মধ্যে, টকরি মানে বুঝতে পারছেন, একটি কি বলে, ব্যাতের ঝুড়ি, ব্যাতের ঝুড়ি জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে মাথায় করে নিয়ে যেতেন যেখানে যাবেন। তো জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে বিহারী এইভাবে একটি ঝুড়ির মধ্যে, টকরির মধ্যে নিয়ে আসেন, খুবই বৃদ্ধ অবস্থা। কিন্তু জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ যখন সেই স্থানটিকে দর্শন করলেন, যেটা যোগপীঠ নামে আমরা জানি, যেখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতরণ হয়েছেন, সেই স্থানটি দেখে উনি নৃত্য করতে লাগলেন। ভাবুন ওই অবস্থায়, কিন্তু যখন এই স্থানটি দেখলেন তখন উনি ওখান থেকে লাফ দিয়ে নৃত্য করতে শুরু করে দিলেন ওই বয়সে। হম, আর বলতে লাগলেন এই তো মহাপ্রভুর জন্মস্থান, এই তো মহাপ্রভুর জন্মস্থান। হম, তো জগন্নাথ দাস বাবাজির প্রণাম মন্ত্রটি কি আছে? গৌর আবির্ভাব ভূমিস্থ, গৌর আবির্ভাব ভূমিস্থান निर्देता सजने प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हाँ, তো গৌর আবির্ভাব ভূমির স্থান, যে গৌর আবির্ভাবের যে জন্মস্থান, নির্দেশটা উনি নির্দেশ করে দিলেন যে এটাই সজ্জনা প্রিয়া। আর উনি সমস্ত সজ্জন মানে সমস্ত বৈষ্ণবদের প্রিয় ছিলেন। বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ কি জয়। তো পরবর্তীকালে আসলে চাকরির জন্য শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর জগন্নাথ পুরীতেই অবস্থান করতেন। ওনার যে এখন চৈতন্য গৌরীয় মঠ বর্তমানে, সেটি ওনার গৃহ ছিল। ওই স্থানটির নাম নারায়ণ ছটা, নারায়ণ ছটা। বড়দণ্ডা যে রাস্তাটি আছে, বড়দণ্ডা রাস্তা মানে যেখানে জগন্নাথ পুরী থেকে গুন্ডিচা মন্দিরে যাওয়ার যে রাস্তাটা, রথযাত্রার রাস্তাটা, সেটার নাম হচ্ছে বড়দণ্ডা। হ্যাঁ, তো সেই রাস্তার সামনে মাঝখানে আপনারা গেছেন, হয়তো সবাই তো গেছেন, চৈতন্য গৌরীয় মঠ, সেখানে সেটাই হচ্ছে নারায়ণ ছাটা নামক গৃহ, সেটাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহ ছিল। পরবর্তীকালে প্রচারের জন্য ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সারদা ঠাকুর এই গৃহ বিক্রি করে দিয়েছিলেন, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ প্রিচিং, অর্থের জন্য। এনিওয়েজ, সো কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মস্থান আবিষ্কার করার পর ওনার খুবই তীব্র ইচ্ছা হয় যে উনি চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানের নিকটে উনি বাস করবেন, খুবই তীব্র ইচ্ছা है ওনার। तो हाँ बोलिए माता जी। पर वो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोल रहे, पुरी में रहते थे। हाँ, फिर जो मायापुर में जो रेल लाइन बना हुआ उनका घर है, फिर वो सब वहां भी रहते थे। हाँ, एक समय दो जगह रहते थे और बहुत जगह रहते थे। ये भगवान का वैभव प्रकाश है, ठीक है। তো ওনার খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে এই স্থানটি মানে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের স্থান আবিষ্কার করার পর ওনার খুব তীব্র ইচ্ছা হলো যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নিকটে বাস করার। তো উনি সেই সময় উনি এই স্বরূপগঞ্জে চলে আসেন। আর স্বরূপগঞ্জে এসে এই স্থানে গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন, প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু ওনার অনেক বৃদ্ধ অবস্থা হয়ে যাচ্ছিল আর প্রচারের জন্য কোনো সহযোগিতা ছিল না। ওই জন্য উনি খুব তীব্র জগন্নাথ ভগবানকে প্রার্থনা করতেন যে আমার একটি কোনো সহায়তার জন্য, প্রচারের সহায়তার জন্য কোনো এক সজ্জন বৈষ্ণবকে পাঠাও। আর ভগবান জগন্নাথ তার এই ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছিল। উনি প্রিমেচিওর মানে উনি চাকরি থেকে রেজিগনেশন দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছিলেন যে আই ওয়ান্ট টু রিজাইন ফ্রম মাই জব
তখনকার সরকারে ব্রিটিশ সরকারকে বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওনাকে তারা অনুরোধ করেন আর রেজিগনেশনটি ফেরত নিতে বলেন। আর উনি বলছিলেন যে আমি এত ভ্রমণ করতে পারবো না, ওই জন্য ব্রিটিশ সরকার তার গৃহে বাইরে অব্দি রেল লাইন নিয়ে এসেছিলেন। আপনারা দেখেছেন হয়তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বরূপগঞ্জের যে গৃহটি, তার ঠিক বাইরে অব্দি রেল লাইন চলে এসছে। আর আমি যেমন বলছিলাম যে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান এটাকে নির্মাণ করার জন্য সেই সময় শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতায় ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করে এক টাকা, অবশ্য তখনকার 8 টাকা, আজকালকে 1 টাকা অনেক, 1 টাকা ভিক্ষা করে সেই সংগ্রহ করে সেই যোগপীঠ যে এখন যেটা, সেই জন্মস্থান উনি নির্মাণ করেন। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থার জন্য উনি এইভাবে প্রচার করতে পারছিলেন না, তো উনি ভগবান জগন্নাথকে প্রার্থনা করলেন। ভগবান জগন্নাথ ওনার প্রার্থনা শুনে ওনার পুত্র রূপে শিলা ভক্তি বিমলা প্রসাদকে পাঠালেন। বিমলা প্রসাদ, আমরা জানি বিমলা দেবী হচ্ছে ভগবান জগন্নাথের খুবই প্রিয় ভক্ত। সবচেয়ে প্রথমে ওনার মন্দিরেই জগন্নাথ প্রসাদ ওনাকে প্রদান করা হয়, আর তারপর সেটি আনন্দবাজারে গিয়ে ভক্তদের বিতরণ করা হয়। আর তার পেছনে আপনারা জানেন তো নিশ্চয়ই যে ঘটনা, যে মহাদেব নারদমুনি থেকে একটু মহাপ্রসাদ পেয়েছিলেন, তখন পরবর্তীকালে বিমলা দেবী মানে দুর্গা দেবীর জন্য, পার্বতী দেবীর জন্য কিছু রাখেননি। তখন পার্বতী দেবী খুব ক্রোধ হয়ে গেছিলেন, আর তার ফলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশ্বাস দেন যে কলিযুগে আমি আমার যত প্রসাদ, আমি অবতরণ হবো, যত প্রসাদ সবচেয়ে প্রথমে তুমিই পাবে। বিমলা মন্দির আছে না পুরী মন্দিরের চত্বরের ভিতরে, আপনারা দর্শন করেছেন হয়তো। তো যাই হোক, ভগবানের প্রসাদ রূপে স্বীকার করে সেই পুত্রের নাম উনি বিমলা প্রসাদ থাকলেন। আর ছোটবেলা থেকে এই বিমলা প্রসাদ খুবই শাস্ত্রে পারঙ্গত। আর এই বিমলা প্রসাদ জন্ম কোথায় হলো? সেই নারায়ণ ছটার জগন্নাথ পুরীতে বাসস্থানে, এই 6 ফেব্রুয়ারি 1874-এ, মানে আমাদের শিলা প্রভুপাদের আবির্ভাবের কত বছর আগে? 22 বছর আগে, 1896 - 1874 উনি আবির্ভাব হলেন বিমলা প্রসাদ। प्रभु के 74 की 84? 1874। 74। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले प्रभु की ये बिमला प्रसाद का आविर्भाव हुआ, फिर बिमला देवी, दोनों एक है कैसे? हमको समझ में नहीं आया। दोनों एक है कैसे? जगन्नाथपुरी में बिमला प्रसाद का आविर्भाव हुआ। বিমলা প্রসাদ মানে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আর বিমলা দেবী মানে হচ্ছে ভগবানের ভোগ সবচেয়ে প্রথমে ওনাকে নিবেদন করা হয় জগন্নাথ মন্দিরে। हाँ, तो उनके उदाहरण में उनको दिया प्रभु, तो मतलब दोनों एक हुआ कैसे? बाकी लोग समझ पाया ना? जी जी, नाम रखे थे भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर का पहला नाम बिमला प्रसाद था। हाँ, उनका पिता ने रखा, बचपन में उनका नाम रखा बिमला प्रसाद दत्त। हाँ, यही सुने थे। तो ये तो ठीक है प्रभु, लेकिन बिमला देवी यहाँ कैसे मैच हो गई? बिमला देवी यहाँ कैसे मैच हो गया? क्योंकि जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना करते थे हमको एक असिस्टेंट दो, और जगन्नाथ भगवान ने उनका अनुरोध सुन लिया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका पुत्र रूप में जन्म। तो ये इनका जन्म भी बहुत अद्भुत हुआ कि उनका जन्म के समय जो नारी अम्बिलिकल कॉर्ड जो माता के साथ अटैच रहता था, माता का नाम भगवती देवी, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के स्त्री के नाम। तो बिमला प्रसाद का वो अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे करके रैप हुआ था, रैप माने उनको पैचा हुआ था, जैसे लग रहा था कोई यज्ञ पवित है। हरे कृष्ण, एकदम यज्ञ पवित जैसा ऐसे करके घुमा हुआ था उनका शरीर से। नाड़ी
अम्बलिकल कॉर्ड। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो इससे पता चलता है कि बहुत प्रभावशाली ब्राह्मण का, वैष्णव का आविर्भाव हुआ है। और आविर्भाव के कुछ दिन बाद ही रथ यात्रा था। जैसे फरवरी महीना चल रहा है और रथ यात्रा आता है आपका जून जुलाई महीना में। तो उस समय जब बड़ौदांडा रास्ता से जगन्नाथ रथ गुंडीचा मंदिर की तरफ जा रहा था, तो एकदम नारायण छटा यानी चैतन्य गौरी मठ वर्तमान में, वहां आकर जगन्नाथ रथ रुक गया और कोई भी उसको धक्का देकर ले नहीं लिया पा था। तो उस समय मिस्टर केदारनाथ दत्त, दैट इज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये बहुत सोचा कि बहुत अच्छा अवसर है, तो उन्होंने भगवती देवी को निवेदन किया कि विमला प्रसाद का अन्नप्राशन हो जाए। तो भगवती देवी ने विमला प्रसाद को, तब कितना 3-4 महीने का शिशु, उनको रथ के ऊपर ले गया। एक्चुअली आगे माने 15-20 साल आगे भी रथ के ऊपर चढ़ने देता था, भगवान को आलिंगन करने का मौका देता था। हम खुद भी किया। आई डोंट नो आप लोग में से कौन किया ये आगे अलाउ। प्रभु मैंने किया। हरी बोल। प्रभु ने किया। हरी बोल। तो मैं भी क्या है। हाँ, लेकिन आजकल तो देता नहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो হরে কৃষ্ণ হরি বল। রাধে রাধে। আমি যে হুলিতে করেছি, 3 জনকেই করেছি হুলিতে। হরে কৃষ্ণ বল। हुली का জগন্নাথ দেবকে। अच्छा, ओके। तो उस समय जगन्नाथ भगवान का जो सो क्या बोलता है, निर्माल्य अन्न, आप लोग मालूम ना, पिंक कलर बैग में जो मिलता है, उसी को देकर बच्चे का अन्नप्राशन कराया गया। हरि बोल। और भगवान जगन्नाथ का प्रसादी माला भी गला से गिर गया उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर। सो ऐसा इतना सुंदर चीज हुआ। भगवान जगन्नाथ के चरणों में एक्चुअली भगवती देवी ने विमला प्रसाद को रखा था और ऊपर से भगवान का प्रसादी माला गिर गया विमला प्रसाद के ऊपर। इससे पता चलता है कि बहुत उन्नत वैष्णव है बचपन से। और बचपन से ही बहुत श्रुतिधर था विमला प्रसाद। श्रुतिधर इतना था, श्रुतिधर माने जिनको मेमोरी वेरी वेरी शार्प है, एक बार सुन लिया तो वो आजीवन रह जाता है। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंतिम समय में भी 50 साल आगे उन्होंने बचपन में क्या ग्रंथ पढ़ा, वो एकदम लाइन बाय लाइन एज इट इज बता सकते थे। और जैसे मैंने बताया कि बचपन में ही वो भगवत गीता कंठस्थ कर लिया था 6-7 साल उम्र में। हाँ बोलून प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু, যে প্রণাম করার সময় যদি ভগবানের প্রসাদী মালা গলায় পড়ে যায়, শুভ না অশুভ? আপনার বুদ্ধি কি বলে? না, আমি ওই বুদ্ধি নেই বলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমি অতটা খেয়াল করিনি, আপনি বলার ফলে আমার এখনো রিমাইন্ড হলো। এই বছর যে আমি কটকে গেছিলাম, সাক্ষী গোপালে গিয়েছিলাম। সাক্ষী গোপালে মোবাইল ইউজ করতে দেয় না, আমি এটাকে রেখে দিয়ে প্রণাম করছি, একটা মালা এসে আমার গলায় পড়লো। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ প্রভু। আপনি যদি পারমিশন দেন আমরা একটু শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের লীলা শুনি। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। থ্যাংক ইউ। তো আর যখন কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ির যখন এক্সকাভেশন হচ্ছিল, এক্সকাভেশন মানে খোদাই হচ্ছিল বাড়ি নির্মাণের সময়, সেই সময় সেখান থেকে কুর্মদেবের বিগ্রহ পান শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। আর ছোটবেলায় উনি বিমলা প্রসাদকে শিক্ষা দেন কিভাবে নৃসিংহদেবের আর কুর্মদেবের আরাধনা করা হয়, সেই শিক্ষা প্রদান করেন। 6 বছর বয়সেই শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর একটি জপমালা নিয়ে এসে তার পুত্রকে দেন, বিমলা প্রসাদকে দেন, ভগবানের নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার জন্য, আর নৃসিংহ মন্ত্র প্রদান করেন। আর আমি প্রবচনে শুনছিলাম গুরু মহারাজ বলছিলেন যে হরিনাম প্রদান করার জন্য কোনো দীক্ষার দরকার নেই। যদিও আমাদের অফকোর্স ইসকনে হরিনামের দীক্ষা হয়, কিন্তু আসল দীক্ষা ব্রাহ্মণ দীক্ষা, এরপরে যে সেকেন্ড ইনিশিয়েশন, দ্যাট ইজ ইনিশিয়েশন।
কারণ কি হরিনামের জন্য আমরা যখন হরিনাম শুরু করেছি আমরা তো অনেকেই দীক্ষার আগেই জপ করা শুরু করেছি, হ্যাঁ কি না? হরিনাম জপ করার জন্য কি কোনো ইনিশিয়েশন মানে টু ইনিশিয়েট? there was no requirement, there is no requirement. Anybody can start chanting Hare Krishna Maha Mantra, but anybody cannot chanting the Gayatri Mantra without being a Brahman. বুঝতে পারলাম? So anyways, so Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bimala Prasad আর উনি সেই কুর্মদেব আর নৃসিংহদেবের আরাধনা করতেন। আর ওনার পিতা শ্রীলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এডিটিং এ, কারণ কি উনি অনেক গ্রন্থ লিখতেন, ছোটবেলা থেকেই সাহায্য করতেন, অ্যাসিস্ট করতেন। যেমন সজ্জন তোষী নামক শ্রীলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গ্রন্থ লিখতেন অশোকপ্রভু, সেইগুলো এডিট করার জন্য বিমলা প্রসাদ ছোটবেলা থেকে, বুঝতে পারছেন, অচ্যুত করণেশ্বর প্রভু অ্যাসিস্ট করতেন। আর পরবর্তীকালে শ্রীলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উনি সাজেস্ট করেন, সাজেস্ট কি বাংলা কি বলে, উনি मंतव्य दिले, प्रस्ताव रखते हैं। প্রস্তাব, উপদেশ 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 দিলেন তার পুত্রকে যে গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য। গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ প্রায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের থেকে শ্রবণ করতেন কৃষ্ণ কথা। আর ওই সময় সবচেয়ে পারঙ্গত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু উনি খুব বৈরাগী ছিলেন। এতই বৈরাগী ছিলেন যে উনি ভজন কীর্তন শৌচালয়ে গিয়ে করতেন। কারণ কি সবাই তার পেছনে শুধু গিয়ে তাকে বিরক্ত করতেন, বাবাজি বাতাও মেরা হাত দেখকর क्या मेरा ফিউচার কব আয়েগা, টাকা কব আয়েগা, ये कब आएगा वो कब आएगा, সেই জড়জাগতিক থেকে বিরক্ত হয়ে উনি শৌচালয়ে গিয়ে ভগবানের নাম জপ করতেন। তো যাই হোক, আপাতত দৃষ্টিতে বাহির দৃষ্টিতে উনি অশিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বুঝতেই পারছেন উনি বৈষ্ণবের সার্বভৌম, মানে ওনার ভেতরে ভগবানের জন্য কত ভক্তি ভজন প্রেম ছিল। কিন্তু বাইরে আপাতত দৃষ্টিতে উনি অশিক্ষিত, এইভাবে উনি নিজেকে জড়জগতে প্রদর্শন করতেন। আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওনার পুত্রকে আদেশ দিলেন যে তুমি গিয়ে শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করো। যেমন বলছেন দীক্ষা মানে ব্রাহ্মণ দীক্ষা ওই সময়। তো শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কাছে যখন উনি গেলেন শ্মশান ঘাটে নবদ্বীপে, তখন গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বললেন তুমি আমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য এসছো? তুমি শাস্ত্রে এত পারঙ্গত, তুমি আমার কাছে এসছো দীক্ষা নেওয়ার জন্য? বিমলা প্রসাদ কিভাবে বলেন? তো বিমলা প্রসাদ বলেন না, আসল শিক্ষিত আপনি, কারণ কি কৃষ্ণ তত্ত্বের শিক্ষা আপনার মধ্যে আছে, কৃষ্ণ তত্ত্ব আপনার মধ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ কিছুতেই রাজি হলেন না, বলছেন না আমায় দীক্ষা প্রদান করুন, কিন্তু বলছেন না। আচ্ছা, ওনাকে এড়ানোর জন্য বললেন ঠিক আছে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে তোমায় জানাবো, ওনার থেকে আমার অনুমতি নিতে হবে। তো আবার বিমলা প্রসাদ কিছুদিন পর গেছেন, আপনি ভগবানের থেকে অনুমতি নিয়েছেন? বলছে ও আমি ভুলে গেছি, ঠিক আছে আমি অনুমতি নিতে ভুলে গেছি। আবার এইভাবে এড়ানোর জন্য আবার কিছুদিন পর ছিল বিমলা প্রসাদ গেলেন ওনার কাছে, বলছেন যে আপনি ভগবান থেকে অনুমতি নিয়েছেন? বলছেন হ্যাঁ নিয়েছি। ভগবান কি বললেন? ভগবান না বলে দিয়েছে, ভগবান না বলে দিয়েছে, তোমার দীক্ষা দেওয়া দিতে পারবেন। তখন উনি বিমলা প্রসাদ বললেন আমি জানি আপনি তার ভক্ত যিনি সবচেয়ে বড় ঠগী। সবচেয়ে বড় ঠগী কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। चौरंगनाग्राम क्या 84 में आता है ना, দুকুলে চোরম। তো আপনি সবচেয়ে বড় ঠগীর ভক্ত আমি জানি, কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমায় ঠগাবেন না, দয়া করে দীক্ষা প্রদান করুন, না হলে আমি এই গঙ্গায় ডুবে নিজের প্রাণ ত্যাগ করব। একদম সিরিয়াসলি এইভাবে উনি
বলেছেন গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ। তখন গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ তার উপর কৃপা প্রদর্শন করে বললেন যে যাও গিয়ে গঙ্গাতে স্নান করে এসো আর আমার থেকে দীক্ষা গ্রহণ করো। তো গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ বিমলা প্রসাদকে দীক্ষা প্রদান করেন, আর আর কাউকে শিষ্য বানাননি, শুধু ওনাকে একজনকে শিষ্য বানিয়েছেন জীবনে, বিমলা প্রসাদকে। আর কি নাম প্রদান করলেন, किनको मालूम है क्या नाम दिया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्री पार्श्व भानुवी देवी द्वैतो दास, ये था उनका दीक्षित नाम, श्री पार्श्व भानुवी देवी द्वैतो दास। तो देखिए गौरकिशोर बाबाजी महाराज अपने आप को अशिक्षित, ऐसे बोलते थे, अशिक्षित थे, लेकिन नाम क्या दिया आप समझ ही पा रहे हैं कितना उनको कृष्ण तत्व मालूम है। श्री पार्श्व भानुवी द्वैतो दास এর মানে কি, এর অর্থ হচ্ছে বৃষভানু মহারাজের কন্যার দ্বৈত দাস। तो उसे फिर ये नाम कब मिला भक्ति सिद्धांत उनका? বৃষভানু মহারাজের কন্যার দ্বৈত দাস মানে লাভার, মানে ওনার যে প্রেমিক মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দাস। পার্শ্ব ভানুবী দেবী দ্বৈত দাস, বোঝা গেল? তো দ্বৈত মানে প্রভু, দ্বৈত দাস, দ্বৈত মানে লাভার, কান্তা। তো এরপর এই নাম গ্রহণ, এই মানে দীক্ষা নেওয়ার পর শিলা ভক্তি सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हीं 10 बছর, हाँ ठीक है, कब आएगा सिद्धांत नाम सब बताएंगे, आस्ते आस्ते थोड़ा होल्ड कीजिए। यही प्रश्न है क्या? कब? नहीं पर जैसे आप बोल रहे हैं ना, दायिता जैसे विश्व भानु देवी दायिता कृपा दे, वो भी तो उसमें आता है ना, दायिता कब्द की संबंधी विज्ञान दाहिने पर होए नमा। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कहाँ थे हम? दायिता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार के लिए, इसके बाद दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने 10 साल कठोर तपस्या किया। उन्होंने 10 साल महाप्रभु के आविर्भाव स्थान यानी योगपीठ में उन्होंने प्रण लिया 3 लाख नाम प्रतिदिन जाप करने का, जैसे हरिदास ठाकुर, शिलादास ठाकुर जप। 10 साल उन्होंने ऐसा योगपीठ में कंटिन्यूअस निरंतर उन्होंने जप किया, ऐसे 192 राउंड्स एवरी डे, हर एक दिन। कभी कभी बारिश आता तो छत्र लेकर बैठ के उधर जप करते थे छत के नीचे। और इस तरह से और 1912 साल में शिला गुरुदेव गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज उन्होंने अपने अंतिम लीला किया। और अंतिम लीला के समय उनका उनका मृत शरीर के आसपास, दिव्य मृत शरीर के आसपास सब अपसंप्रदाय वाले आ गए और क्लेम करने लगे। क्लेम को हिंदी में क्या बोलता है? दर्शाने लगे, दावा करने, उर्दू में दावा करने लगे कि ये हमारे गुरु महाराज है, तो इनका समाधि हमारे मठ में होगा। ये बोला हमारे मठ में होगा, ये बोला हमारे घर पे होगा, हमारे, ऐसे करके सब दावी करने लगे। तो उस समय इसीलिए कि अगर उनके घर के आसपास हो गुरुदेव का समाधि तो सब दर्शन करने आएगा और उसको अर्थ मिलेगा, प्रसिद्ध हो जाएगा उसका स्थान, क्योंकि वैष्णव सार्वभौमों का समाधि है। तो बाद में जब विमला प्रसाद को, यानी उस समय तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये सूचना मिला तो उन्हें भागते हुए गए अपने गुरु महाराज को दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज का शरीर को दर्शन करने के लिए। और उन्होंने गुरु महाराज के शरीर को प्रणाम किया। तो उस समय वो जाकर देखा कि उनका शिष्य, सो कॉल्ड अपर संप्रदाय शिष्य लोग,
शिष्य तो था नहीं, फिर भी उन लोग उनके गुरु महाराज के चरण में रस्सी बांध रहा है, मोटा रस्सी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो अपर संप्रदाय वाले बोलने लगे कि गुरुदेव ने बोला है मेरा मृत्यु के बाद मेरा शरीर, मैं इतना पतित हूं, मेरा शरीर को नवद्वीप में रस्सी बांधकर घसीट घसीट के लेकर पूरा नवद्वीप के सड़कों में ले जाना, इसी तरह से मेरा शुद्धिकरण होगा। उसीलिए गुरुदेव का आदेश पालन कर रहे हैं, उनके चरणों में हम लोग रस्सी बांध रहे हैं, उनका भी घसीट घसीट के मायापुर नवद्वीप में सड़कों में ले जाएंगे। तुरंत गुस्सा होकर ये सुनकर, आश्चर्य और गुस्सा होकर बिमला प्रसाद ने बोला, क्या तुम लोग मूर्ख हो क्या? गुरुदेव ने नम्रता से, विनम्रता से ये बोला होगा, लेकिन शिष्य का ये करना क्या उचित होगा? उन्होंने रस्सी खोल दिया। तो उसमें सब बोलने लगा कि ठीक है, अभी गुरुदेव को हम लोग समाधि देंगे हमारे घर में, क्योंकि हम बोला तुम लोग अगर गुरुदेव का शिष्य और उनका, तुम लोग क्या उनका शिष्य हो क्या? तुमको दीक्षा दिया है? गुरुदेव ने एक ही व्यक्ति को दीक्षा दिया है उनके जीवन में, वो है मैं। और तुम लोग जो अपने आप को उनका शिष्य मानते हो, तुम में से कोई है जो नारी संगत नहीं किया है 6 महीना में? कोई है इधर उपस्थित? सब चुप हो गया। अच्छा 6 महीना तो दूर की बात, 1 महीना कोई नारी को स्पर्श नहीं किया, सबका सर नीचे। अच्छा 1 महीना तो दूर की बात, 1 हफ्ता कोई नारी का संगत नहीं की, सब माथा हेट। अच्छा 1 हफ्ता तो दूर की बात, 2 दिन फिर भी माथा नीचे हो। तो फिर बिमला प्रसाद बोला कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, अगर गुरुदेव को स्पर्श करने का किसी का अधिकार है तो वो उनका शिष्य बादशाह भवानी देवी दैत्य दास का है और किसी का नहीं। तो उन्होंने फिर अपने गुरु महाराज का शरीर को समाधि दिया। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा में भी हम लोग जाते हैं, वो स्थान जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि, आई डोंट नो कौन कौन गए हैं आप में से, तो वो जाता है हम लोग परिक्रमा में, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में हम बहुत लोग गए हैं, वेरी फेमस। और 1912 में 1912 साल में ऐसे उनका गुरु महाराज देह शांत हुआ, और उसी के 2 साल बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 1914 साल में उन्होंने भी अपने अंतिम लीला प्रकट किया। तो इसके बाद बिमला प्रसाद यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा अकेला हो गया, मैंने पूरा भार, पूरा दायित्व, वैष्णव प्रचार का पूरा जिम्मेदारी उन पे आ गया। और उन्होंने 3 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 प्रिंटिंग प्रेस स्थापन किया, और ये तीनों प्रेस, एक कलकत्ता में था, एक कृष्णनगर में था और एक मद्रास में था। ये तीनों प्रेस का उद्देश्य था कि भक्ति मूलक ग्रंथ छपवाकर पूरा विश्व में प्रचार हो। ये तीनों प्रेस का उन्होंने नाम दिया बृहत मृदंगा। क्यों नाम दिया? क्योंकि मृदंगा जब बजाते हैं तो आसपास सुनाई देता है, लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस जो मृदंगा जैसा है, क्योंकि इनका आवाज सारा विश्व में गूंजेगा भगवत तत्व के वाणी के हिसाब से, इसलिए बृहत मृदंगा नाम दिया। और शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में इतना पारंगत था कि उनका सिद्धांत, उस समय ज्योतिष शास्त्र में जो एसोसिएशन था, समाज था, उन्होंने बिमला प्रसाद को सिद्धांत उपाधि से उनको प्रदान किया। शास्त्र में पारंगत था तो सरस्वती उपाधि भी उनको मिला था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और गुरुदेव के प्रकट के बाद उन्होंने गुरु महाराज के चित्रपट के सामने उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि उस समय और कोई था नहीं उनको संन्यास दे लायक, वैसा उपयुक्त कोई व्यक्ति था भी नहीं। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या नाम था उनका, हिरण्य गौरांग प्रभु, वो कौन था वो जिनसे
दीक्षा लिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्या नाम था उसका, कि गांगुली? याद नहीं। हाँ, तो उनसे एक बहुत व्यक्ति से दीक्षा लिया, क्योंकि अभी लेने का प्रथा था उस समय, तो लेना पड़ेगा किसी से। तो वो गांगुली बाबू के चरण छुआ भक्ति विनोद ठाकुर ने, और गांगुली बाबू ने चरण छूने भी दिया, नाम याद नहीं आ रहा है। तब उस समय विमला प्रसाद ने बोला, तुम उनको चरण छूने दिया, मेरे पिताजी तुम्हारा चरण छुआ, तुम चरण छूने दिया, तुम मालूम है क्या किया तुम? ऐसे करके विमला प्रसाद बोल दिया उनको। क्या नाम था, क्या गांगुली, याद नहीं आ। एनीवेज, तो शिला भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर, उनको सिंह गुरु बोला जाता था, इतना उनका प्रचार प्रभावशाली था। अपसंप्रदाय को भगाने का, रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत धांता हारी ने, इतना उनका, बिकॉज जैसे मैंने बताया था, अपसंप्रदाय इतना प्रमुख हो गया था महाप्रभु के अप्रकट लीला के बाद कि लोगों को महाप्रभु की शिक्षा लेने में डर लग रहा था। लोग सोच रहे था यही शायद महाप्रभु का शिक्षा है जो ये अपसंप्रदाय वाले कर रहा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत विरोध किया, इतना विरोध किया कि अपसंप्रदाय वाले एक लीला आते जहां उनको हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया था विमला प्रसाद को। और किसी तरह उनका जो शिष्य है श्रीधर महाराज, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सफेद वस्त्र दे दिया, उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, और इस तरह से उन लोग को धोखा दे दिया, जो लोग उनको हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया था, एक दल, अपसंप्रदाय वाले का दल। हाँ, यस, करुणा राधे माता जी। जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम कब पड़ा उनका? ये नाम से वो प्रसिद्ध था दीक्षा, अपने संन्यास के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आफ्टर दीक्षा, आफ्टर संन्यास दीक्षा, आफ्टर संन्यास दीक्षा। यस, उनका गुरुदेव ने नाम दिया था श्री बार्शो भानुवी देवी द्वैतो दास। हाँ हाँ हाँ, वो तो हुआ इन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी ने। तो फिर उन्होंने ये किनसे लिया था? तो अभी बताया ना, उन्होंने अपने गुरु महाराज के चित्रपट के सामने रख के संन्यास ग्रहण किया। ओह, आई सी। अच्छा अच्छा। वो जब गुरु महाराज तो अप्रकट थे ना, तो फिर नाम कैसे मिला उनको? अरे मैंने तो अभी बताया, ये समाज ने उनको ये सब पदवी दिया। सिद्धांत पदवी कहाँ से मिला, सरस्वती पदवी कहाँ से मिला, तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाम से वो विख्यात है। अच्छा, समझ में आया? हिरण्मय गौरांग प्रभु, भक्ति सिद्धांत मालूम होता है कि जो लिखे थे ना, ज्योतिष कोई सिद्धांत जैसे कुछ लिखे थे, उनका वो समाज ने उनको ये टाइटल दिया था, सिद्धांत ज्योतिष समाज ने। वो उन समय का ज्योतिष, बिकॉज ही वाज वेरी वेरी फेमस, ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगत थे। और जब उनका पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जीवित थे, उस समय एक बहुत बड़ा तर्क का एक अनुष्ठान होता था, डिबेट कंपटीशन होता था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, विश्व ब्राह्मण समाज ऐसे एक अनुष्ठान होता था, जहां हर एक साल सब स्मार्ट ब्राह्मण लोग उस समय जाकर तर्क करते थे कि उन लोग कैसे श्रेष्ठ है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हर एक साल जाते थे, लेकिन अभी देखा कि विमला प्रसाद बड़ा हो गया, शास्त्र में बहुत पारंगत है, तो उनको भेजा, बोला तुम जाओ इस साल। तो विमला प्रसाद जाकर पहले तो बहुत गुण कीर्तन किया ब्राह्मणों का, स्मार्ट ब्राह्मणों का, कि आप लोग भगवान बताते हैं कि शरीर का सर का अंश जो है वो ब्राह्मण इंडिकेट करता है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी एक्सेट्रा, बहुत उनका तारीफ किया, सब बहुत खुश हो गए। फिर बाद में बोला कि इन सभी से भी श्रेष्ठ है वैष्णव, क्योंकि वैष्णव उनका सिद्धांत ब्राह्मणिकल है। ब्राह्मणिकल यानी ब्राह्मण यानी जो परम ब्रह्म का जिनको ज्ञान है। तो इस तरह से फिर वैष्णव के बारे में जब पूरा बताया, तो सभी ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर तरीका से उनको ग्रहण किया, क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल एक्सेट्रा बहुत एक्सेप्टेबल था, अप्रोचेबल था। उनका गौरी मठ में अभी भी वो ग्रंथ है,
ब्राह्मण और वैष्णव, वेरी फेमस। पूरा उसका जो स्पीच था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, पूरा ऐसे पतला बुक है, पूरा वो स्पीच एज इट इज अभी भी एक बुक के फॉर्म में है, ब्राह्मण और वैष्णव। कभी गौरी मठ में जाएंगे तो वो खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं कब से हिंदी बोलने लगा बांग्ला बोलते बोलते, एनीवेज ये पता ही नहीं चला, अभी नेचुरल हो गया। और फिर तो उनको सिंह, जैसे मैं बता रहा, उनका प्रचार इतना तीव्र था, स्पेशली अपर संप्रदाय भगवानी वाला, तो उनको सिंह गुरु के नाम से उनको ख्याति, उनको बड़े प्रसिद्ध हो गया सिंह गुरु। क्योंकि सिंह जब आता है तो ये छोटा मोटा जो क्या बोलते हैं, जैकल को क्या बोलता है, ये सब भाग जाता है ना, गिदर, जैकल, सियाल वियाल सब एकदम करके एकदम सब भाग जाते हैं। वैसे ही जब सिंह गुरु आते थे सब ये सब अपर संप्रदाय वाले आउल बाउल लारा लेरी करता था, एकदम धोटी उठा के भागता था, इतना इनसे डरता था सिंह गुरु से। और उन्होंने एक समाज भी शुरू किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उस समाज का नाम दिया चिरो कुमार समाज। उन्होंने बोला जो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पालन कर सकते हो, यूथ लोगों को बोला, और अविवाहित हो और नैष्ठिक ब्रह्मचारी पालन कर सकते हो और करके भगवान का भजन कीर्तन करना है, तो उन लोगों के लिए हमने एक समाज बनाया चिरो कुमार। नाम से समझ में आ रहा है ना, चिरो माने इटर्नल, कुमार माने ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ये समाज बना है। तो इसमें बहुत लोग ज्वाइन किया था, बहुत लोग ज्वाइन करे थे उस समय। एक्चुअली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रचार इतना इतना हाई क्लास था कि उस समय बंगाल का जो पढ़े लिखे, बहुत उच्च पढ़े लिखे भक्ति व्यक्ति था, उन लोग बहुत आकर्षित हुआ इनका प्रचार से। दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड। अभी भी अगर आप लोग गौरी मठ में प्रभुपाद जी का अगर आप ग्रंथ श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो देखिएगा उनका लैंग्वेज इज वेरी वेरी हाई क्लास। एक बार शायद कुछ प्रसंग आता है कि उनका इंग्लिश इतना हाई क्लास था कि ब्रिटिश लोग उनका हिंदी पढ़ के बोला कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, माने वी नीड परपोर्ट्स एक्सप्लेनेशन इन नॉर्मल लैंग्वेज। इतना हाई क्लास उनका इंग्लिश था उस समय। तो समय भी बहुत सीमित है। काउंट हो रहा है क्या सुधामाई वल्लभी माता जी? हाँ प्रभु। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। काउंट पिन दे सकते हैं। तो ये चिरो कुमार सभा उन्होंने प्रतिष्ठा किया। बाद में गौरी मठ जो ये स्थान मिला, किसी ने डोनेट किया इधर बाग बाजार में, इसी को वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाया। और उनका गंधर्विका गिरिधारी, उनका सेवित विग्रह मासिरवाड़ी में आप लोग देख सकते हैं। इधर राधा विनोदी नंदन विग्रह भी इधर स्थापन किया। और उन्होंने कुछ भक्त लोग को विदेश में भी भेजा, क्योंकि महाप्रभु बताया था पृथ्वी आते जो नागुरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरना। 3 भक्त को, 3 शिष्य को उन्होंने इंग्लैंड में भेजा था प्रचार करने के लिए, किंतु कुछ दिनों में उन लोग वापस आ गया। और उसी दौरान 1922 साल में अशोक प्रभु ये उल्टा डांगा गौरीवाड़ी लेन में उन्होंने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अभय चरण, जो उस समय 26 साल के थे, पहले बार उन्होंने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, और पहला मुलाकात में उन्होंने बोल दिया कि तुम जैसे शिक्षित नवयुवक, तुम लोग पाश्चात्य देश में जाकर क्यों नहीं ये कृष्ण तत्व प्रचार करते हुए अंग्रेजी भाषा में। पहले दिन ही, पहले समय में फर्स्ट सेंटेंस वाज दिस। और हम लोग को मालूम है किस तरह अपने गुरु महाराज का ये आदेश को शिरोधार्य करे श्रील प्रभुपाद 1965 में विदेश में जाकर, और 1966 अगले साल ही इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया, इनकॉर्पोरेट किया न्यूयॉर्क में। और कैसे 10 सालों में कैसे प्रचार हुआ वो तो सारा विश्व साक्षी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा उनका इच्छा था कि एक जीवीसी निर्माण करे गौरी मठ में, क्योंकि इतना बड़ा फैल गया। 10 साल में कुछ ही साल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 107 63 गौरी मठ भारतवर्ष में स्थापन किया, 63 गौरी मठ, और एक रंगून में म्यांमार में, तो टोटल 64 गौरी मठ हो गया। तो इतना गौरी मठ, इतना प्रचार फैला। तो ये रेलवेज में एक कॉन्सेप्ट है, रेलवेज, इंडियन रेलवेज में ये जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन रेलवेज में। तो
उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि गौड़िया मिशन में भी गवर्निंग बॉडी कमीशन हो, जीबीसी हो। ये कॉन्सेप्ट उनको रेलवे से मिला था, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ 10-12 साधु लोग कमेटी का हेड होता है, क्योंकि श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तबीयत बहुत बिगड़ रहा था, और अगर किसी का पतन हो तो संस्था का पतन नहीं होगा, लेकिन जीबीसी बनाना वो नहीं हो पाया और उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया। और फिर उन्होंने 1932 में अपना अंतिम लीला प्रकट किया, और उसके बाद तो क्या हुआ गौरी मठ में हम लोग को अच्छे से मालूम है। पहले गौरी मठ में कोई एक गृहस्थ था, बहुत प्रमुख था, और एक ब्रह्मचारी था। एक गृहस्थ को आचार्य के रूप में रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद, लेकिन वो गृहस्थ का कुछ दिन में पतन हो गया। फिर वो ब्रह्मचारी आया, वो ब्रह्मचारी का पतन हो गया, फिर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सब अपना अपना जहां जहां जो मठ में था वो अपना अपना नाम से मठ का नाम रख दिया, और वैसे चलते गया। तो भगवान श्री राधा कृष्ण का नित्य लीला में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी है। उनका देह समाधि मायापुर में माशीरबाड़ी में है, और उनका पुष्प समाधि राधा कुंड के तट पर भी है और राधा दामोदर मंदिर में भी है। तो कल उनका शुभ आविर्भाव तिथि है, और हम सोच रहे थे कल फ्राइडे है, हाँ, हम तो कल जाएंगे गौरी मठ बाग बाजार, 11 बजे हम उधर दर्शन, वो आरती दर्शन करेंगे और उनका विग्रह भी दर्शन करेंगे राधा विनोदी नंदन। तो हम लोग भी, अगर आप में से कोई जाना चाहते तो आ सकते हैं। 11 बजे हम लोग बाग बाजार गौरी मठ में मिलेंगे। फिर वहीं हम लोग दोपहर का लंच प्रसाद, बहुत सुंदर प्रसाद उन लोग फीस्ट कर देते हैं, तो हम लोग मिलेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभु जय जय जय।